Yes. So last lecture में देखिए हमने what we started is first of all the JSON generator class, and I told you uh, you know about the JSON format, right? And what is the JSON JavaScript object notation is the common format whenever we perform the integration, you know. So whenever we exchange the data between Salesforce or some other, or maybe with any of the APIs, जहाँ पर भी आप API लिख रहे हो, API consume कर रहे हो, either you are writing the API or you are consuming the API, whatever. The message that floats between two different systems, two different applications. In 99% of the cases, it is JSON format because these days, you know, nobody uses XML. XML has so many different complexities, and XML is it actually requires lots of data also, and there are a few of the reasons why you know people are dropping the XML. And JSON format is the most popular format for the data exchange, even with the mobile phones also. You know, even with the mobile phones also. So whenever in the mobile applications, the because there we wanted that everything should be uploaded or whatever. You know, we wanted to reduce that span of time. So in every mobile application, whether whatever the application you download, it's always in the form of JSON format. That is what the internal format, and that is why you know we are learning. So what because few days have been passed, or probably हो सकता है आप भूल गए हो. मैं क्या कर रहा हूँ कि I'm just taking a quick revision. एक बार हम JSON रिवाइज करते हैं, JSON generator class रिवाइज करते हैं, and then what the example that we have taken in the last lecture, that is also we are going to revising. और फिर मैं उसके बाद में जो आज का प्रोग्राम है वो आपको कवर करके दूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद द जेसन एंड यू केम टू नो कि इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेजिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में यूज होती है, जो लैंग्वेज आज की डेट में यूज होती है, दैट इज व्हाट द जेसन फॉर्मेट. बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट एडवांटेजेस विद द जेसन. फर्स्ट एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज लाइक जेसन इज वेरी लाइट वेटेड. Why light weighted? Because everything whatever you transfer in the JSON, it's always transferred in the form of text. टेक्स्ट के फॉर्म में आपका जो कुछ भी आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, इट्स ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. एंड दैट इज द रीजन जेसन जो है बहुत लाइट वेटेड है, और ये सबसे पॉपुलर मैसेजिंग फॉर्मेट है कि वेन एवर वी परफॉर्म द इंटीग्रेशन विद एनी काइंड ऑफ एपीआई, स्पेशली इन द मोबाइल एप्लीकेशन. 100% of the application nowadays they are using only this format, JSON format. And basically, you know, nobody actually is using. So nobody actually is using, you know, apart from this JSON, nobody actually is using XML, and nobody actually using SOAP. Everyone, whatever we are using right now is REST API along with the JSON formats. तो ये important था JSON का. And let's now understand कि हमने JSON कैसा लिखना सीखा. तो JSON always is enclosed within this curly brackets. So whenever you wanted to write down the JSON, you know, we require to write it inside the curly bracket. And then we have seen we also have taken so many different examples for that. So JSON is a kind of, you know, key along with the value, key value pair, where key is always a string. You know, key is always a string. Whatever is a key, if this is a key, if this is a key, this is also a key. So key value pair. So your key is always a string, and so it must be enclosed within double inverted comma. After that, there is a colon. Okay, and after colon acts as a separator. You know, colon just acts as a separator between key and a value. What is a separator? The separator is your colon. Now, if the value, you know, if the value is a number value, okay, if your value is a number, if it's an integer, double, long, you know, so we require to give, we can give it directly. We can give it directly. And if the value still is a string, then obviously you require to code it inside a double inverted comma. So what we did in the past is, you know, we have created a few of the JSON formats manually, right? So that is what we have done. Now that to make this process as an automated process, because it's not possible for every time that we should write it in a manually. And I was disconnected in between. One second, let me share my screen once again. Yeah. So what I was describing is like, you know, okay, we have seen how to write down the JSON formats, you know, and we know like JSON is always written within this curly brackets, and JSON is basically a pair of your key and value. Key must always be a string, and so it must be enclosed within what? Double inverted comma.
Now the value, it depends, if it's an integer, if the value, if it's a number, if it's a, for example, long, or example, it's a double, so we can give it directly. We can give, in that case, value can be given directly. But when the value still is a string, there also you're required to enclose this within a a double inverted comma. So see, in the past lectures, what we did is like, we have written this format manually for so many different classes, for so many different examples, like 5 to 6 examples probably we have taken. Now, in the last lecture, I told you like how we can generate this automatically inside a class. So if I wanted to generate this JSON format automatically, the Apex provide a ready-made class called as JSON Generator class. Inside the Apex, we have this facility. So many times, guys, if you remember, I told you that, Apex is a kind of language, where we get almost 50 to 60% of the portion of the programming. We get it in the form of ready-made classes. We get it in the form of standard classes, right? Now, to create this format, actually we don't require to, write it manually. No, it's not needed. So what we use in the Apex, we use a class called as JSON Generator class. This class have so many different methods that we have taken. And this class actually helps you out, whenever you get this raw data, whenever you get any raw data, whenever you receive any raw data, or rather you wanted to transmit some of the data. For example, what the example that I was taken is, for example, if there's a system, if there's a third party system, if there's an external system, and I wanted to transfer the data of the account object. Let's see, I wanted to transfer the object. I wanted to transfer the data of the account to this third party system. It could be like, for example, the postal map. Okay, it's a postal map system. It's a third party system. This is not a Salesforce. This could have, it could be based on, it's a Java application. It could be like a .NET application. It could be, for example, SAP application. This is not just a Salesforce, that is what. So whenever we wanted to transfer the data of the any object from the Salesforce to any third party system, what we require? We require to convert it from S object to what? To the JSON. We require to convert that data, that record, from the data type of S object from to the JSON. So how we can do this automatically? So there is a JSON generator class for that, right? There's a JSON generator class for that. So JSON generator class is a ready-made class, and it is used for the serialization process. What is a serialization? Serialization का मतलब क्या होता है? Converting S object data type, converting S object data type into JSON. That is what serialization. और इसका जो वाइस वर्सा होगा, JSON से S object में डालना, दैट इज डीसीरियलाइजेशन, जो इसके बाद पढ़ेंगे आपको। जेसन पार्सर क्लास, दो क्लासेस हैं जो आपको पढ़नी है रेडीमेड। वन फर्स्ट इज द जेसन जनरेटर, द सेकंड इज द जेसन पार्सर। now JSON generator class, JSON generator class is used for the serialization process. That means whenever we are intended to transfer data from Salesforce to any other third party system, ठीक है, हम जब भी ये कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि what we are trying to do is like, we wanted to transfer the data from Salesforce to the third party system. That means we are on the transfer side. अभी हम sender हैं. Right now we are what? We are a sender. We are not consuming it. We are actually rather creating. We are transferring. So whenever this is your intention, whenever this is your intention that you wanted to transfer the data from Salesforce to any third party system, it cannot be transferred directly, because आपके पास Salesforce में जो object हैं वो उनका अलग data type है, they are the different objects. But यहाँ अगर if this third party system is written on the Java, it's a completely different kind of application with a complete different kinds of programming, data sets and everything. तो फिर कैसे होगा possible ये? तो in that case, we require to convert it into the JSON. This process is called as serialization process. Converting the record of S object data type into JSON. Converting the record of the data type of S object from the S object, if you are converting it into the JSON, JavaScript object notation. That portion of programming is called as serialization, right? And for serialization, there is nothing. I mean, it's not required you to do it manually. Rather, we have a class. We have a ready-made class inside the Apex called a JSON generator class. So what were the methods? Let's once again revise that also. So there were the method like, write start object and the end object. I told you about this. Every JSON format starts with a curly bracket, starting curly bracket and ending curly bracket. Now this start and the ending curly brackets, the start curly bracket is represented by this method, write start object. The end curly bracket, what you close it, the closing curly bracket is being represented by what? With the right end object. And then write start of array and end of array, field name, okay, and then number, and write string,
write boolean, write null. Write null is also one of the important thing I will be using right now. This, write null. If I don't want it to transfer anything, for example, if the rating equals to null, if active state equals to null, for example, annual revenue equals to null. See, if you wanted to transfer, for example, number, okay, that's okay. Write number. If you wanted to transfer this, write string. But what about null? What about null? If product code is null, or probably if unit price is null, probably if in stock is null, if any of the value is null, then how can we transfer that null? So for transferring the null, there's a separate method called as write null. There's a separate method for that, write null. Okay, that's what the method. And for the date, write date and time is also one of the method. It's not written although, but yeah, there's a method called as write date time also. Then write string field. Okay, what is the benefit? See, if you use write string, write number or write string, this can only write down one value. But with the help of this write string field, what we can give is like we can give the key name along with the value. Value should be always string. If the value is number, if the value is number, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए string value. It should be a string value. It should be a string value. ठीक है? If your value is a numerical value, what's the method you should use? Write number field. So this is what this method gives you. I mean, instead of using two separate methods for writing the key name and for the value, we can club it into one single method. So if your value is a string, you can use this method directly, write a string field. If your value, the second pair, if the value is actually numerical value, it's a number, then you can directly use this write number field. If it's a boolean value, if your value is boolean, you can use this method, right? Boolean field. If it's a date value, you can use this right date field, date time value, like this. So I mean, instead of going with what I suggest you is like instead of going with whenever you wanted to write like this, whenever you wanted to write this statement, whenever you wanted to write this statement along with the key, if you wanted to enter the value, along with the key if you wanted to enter the value, that time that time, instead of using two separate methods, what here I can use write, here I can use write number field, here I can use write string field, these methods. But for this for this you always should write down write uh, write field name, write field like this. तो जहां पे आपको वेयर यू जस्ट वांटेड टू एंटर द फील्ड नेम, वहां पर आप फील्ड नेम देंगे। बट अगर आपको फील्ड नेम के साथ वैल्यू भी एंटर करना है, फील्ड नेम के साथ वैल्यू भी एंटर करना है, देन डोंट गो विद द राइट फील्ड नेम। उसके बदले में आप ये देखो कि वी हैव वन ऑफ द मेथड, हमारे पास एक ऐसी मेथड है दैट अलाउज अस टू राइट डाउन द की अलोंग विद द वैल्यू। तो अगर आपकी वैल्यू इज a string, go with this. If the value is a number, if the value is a number, then go with that right number field, like this. So this we have understood, and then we have taken one program. तो मैंने एक रिकॉर्ड लिया, सिर्फ एक रिकॉर्ड लिया. I just taken one record that time. That record was like कि एक lead record हमें convert करना था with all these details. So we write down one of the program for that. We write down one of the program for that. JSON generator helper class. Okay, so let's do one thing. Let's go to the developer console and let's open that class. This is the class. This is the class that we created in the last lecture. So created a class with the name JSON generator helper. That's a user defined name. You can give any name for that. And then I created a method. Create JSON content. So whenever we wanted to get the facility, whenever we wanted to get the facility of all these methods, if you wanted to use these methods, now these methods are of what? These methods belongs to a class. Which class? JSON generator class. So वैसे देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है. See, if this is my class, if this is my class, if this is my class, any class, नॉट जस्ट विद जेसन जनरेटर, मैं एक कॉमन आपको सी प्लस प्लस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक कॉमन सा प्रिंसिपल बता रहा हूँ. इफ दिस इज अ क्लास एंड इफ दिस क्लास हैव दिस मेथड, मेथड नंबर 1 and then method number 2 and then method number 3 and then method number 4. Okay, let's consider there is a class. It's a general principle of object-oriented programming. This is what I am explaining right now. This is a general principle of any object-oriented programming. Now, the same principle is there into your C++, the same is the principle there onto your Java, .NET, or any other good programming language. If it's an object-oriented programming language, this is the principle. Because see, every object-oriented programming that is built up on few of the basic principles: inheritance, polymorphism, abstraction, data abstraction, you know,
These are some of the common principles of Apex also follows that. So what is that principle? If there is a class and the class have, for example, four different methods. Your class have four different methods. Now, if you wanted here, if you wanted to access one of the method called as M1 method, you wanted to get the facilities of M1 method over here. So what you require to do is like, you first of all require to create an object of the class. You first require to create the object of the class. And along with this object, if, for example, you created obj1, obj1 represents this class, obj1 dot m1, obj1 dot m1. So every such method of the class, every member, not just method, if it's a variable, for example, there is an integer num1, even though you wanted to access num1, then also you require to create obj1 dot num1, obj1 dot num. So every variable, every member, every procedure, every method. So I should rather say every member of the class, because member there are two things, all of the variables of the class as well as all of the methods of the class. Whatever the variables you define inside the class and whatever the methods that you have defined inside the class, that all are called as the member of the class. तो हमेशा याद रखो इस चीज को कि whenever we wanted to access any member of the class, it should always be accessed via objects. We first of all require to create an instance of the classes, objects of the classes, temporary holdings of the classes, and along with that name, along with the name of that instance, we can access the members of the class. We can access the procedures, methods, as well as the variables of that class. So whenever you wanted to access any member, whenever you wanted to access any member of any of the class, you first of all require to create the object of that class. That's a basic principle. That's a basic principle, right? So here also we require to do the same thing. These are some of the methods. These methods belongs to which class? JSON generator class. And I wanted to use this method inside my programming. See, this is my program. This is our customized code. I will define a class with the called JSON generator class. ये हमारी अपनी class. This is not a standard class. JSON generator helper नाम से हमने एक अपनी class बनाई है. अच्छा, इस class के अंदर this is my custom class. इस class के अंदर I wanted to get the facilities of this JSON generator. ये जो standard object, standard class है, इसकी facility मेरे को import करना है. How can I do that? So for that, we require to create the object of the JSON generator. How to create that? How to create that? This is the syntax. System.json generator. Now give the object name, and then system.json.create generator equals to true. So this is the format. So that is what I was trying to say. If you wanted to use any of the method of JSON generator class, you first of all required what? You first of all require to create the object. You first of all require to create the object of JSON of JSON generator class. ठीक है? We first of all require to create the object of JSON generator class. क्योंकि हम चाहते हैं कि जो JSON generator class है उसकी जो मेथड्स है राइट स्ट्रिंग फील्ड और जो भी मेथड है मैं उसको अपनी क्लास में यूज करना चाहता हूँ, यहाँ यूज करना चाहता हूँ. तो आप कहीं भी यूज करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वायर टू क्रिएट वन ऑफ द इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. तो उसका तरीका है सिस्टम डॉट जेसन जनरेटर, देन गिव द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे मेरी केस में मैंने लीड जेन दिया इसको, एंड देन सिस्टम डॉट जेसन डॉट क्रिएट जनरेटर इक्वल्स टू ट्रू, ब्रैकेट रिक्वायर्ड ट्रू. नाउ व्हाट you created one instance, one object of this class. Now with that what we did, हमने फिर ये सारी मेथड्स बनाई. ठीक है? तो इट्स ऑलवेज लाइक ओपनिंग, है ना, ये क्या है, this is my opening curly bracket, this is my closing curly bracket, this one is my closing curly bracket, right? And within that curly bracket, within that opening and the closing curly bracket, within that opening and the closing curly bracket, so everything lies within this only, right? Everything lies within this only. So उसके लिए जो ऑब्जेक्ट्स थी, जो मेथड्स थी, वो आपने लिखा, राइट? स्टार्ट ऑब्जेक्ट एंड राइट हैंड ऑब्जेक्ट, और बाकी फिर जो है वो आपका डेटा पे डिपेंड करता, डेटा पे डिपेंड, राइट? इस तरह से फिर हमने ये किया था. दैट वाज द लास्ट प्रोग्राम. नाउ अब इसमें क्या था कि दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम, सो आई हैव टेकन द रिकॉर्ड फ्रॉम माय साइड. ये हार्ड कोडेड वैल्यूज थी, ये हार्ड कोडेड वैल्यूज थी.
अब हम इस प्रोग्राम का एक्चुअल यूज देखते हैं. दिस वाज जस्ट एन हार्ड कोडेड वैल्यूज. ठीक है. तो ये जो मैंने एग्जांपल बनाया, दिस एग्जांपल ऐसे ही रहने दो उसको. ठीक है. तो ये जो बनाया मैंने, दिस वाज द हार्ड कोडेड वैल्यूज, राइट. अभी मुझे क्या करना है इसके आगे. अभी मैं सेल्सफोर्स के जो हमारी ऑब्जेक्ट्स है वहां से डेटा उठाना है. फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू टेक द डेटा फ्रॉम एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक अकाउंट ऑब्जेक्ट. अकाउंट ऑब्जेक्ट में जो डेटा, इफ आई गो विद द ऑल अकाउंट, इसमें तो काफी सारा डेटा होगा. आई जस्ट 37 रिकॉर्ड्स है. तो मैं इसको ना लिमिट कर दूंगा कि एनी रैंडम 5 रिकॉर्ड्स यहाँ से उठाने हैं और उसको जेसन में करना. कोई भी रैंडम 5 रिकॉर्ड्स उठाने हैं और जेसन में करना. अभी हम एक्चुअल कोडिंग सिखा रहे हैं इसको. ठीक है. अभी आप एक्चुअल कोडिंग पे चल रहे हैं. तो अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक यूज केस है हमारे पास. अभी हम इसके अब इस वक्त तो हमने डेटा अपनी तरफ से दे दिया था, बट ऐसा नॉर्मली ऐसा थोड़ी ना होता है. नॉर्मली क्या ऐसा होता ही नहीं है. दिस वाज जस्ट टू मेक यू यू नो अवेयर ऑफ दिस कि कैसे करते हैं. अभी ये प्रोग्राम देखो आप कि जिसमें आप कह रहे हैं कि यू रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द अकाउंट रिकॉर्ड. सारे अकाउंट रिकॉर्ड को जो है आप जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट, क्योंकि हमको उसको बाहर भेजना है. अब सारे तो मैं नहीं करूंगा, वो काफी बड़ी वैल्यू है 37, तो मैं वहाँ पे लिमिट लगाऊंगा. ठीक है. तो अब ये कैसे करते हैं, चलो. तो उसके लिए एक मेथड बनाता हूँ मैं. ये वाली मेथड. चलो. now for this, what is my use case? This is my use case. So this is my use case. Yeah. So for this use case, for this use case कि हमें जो अकाउंट के रिकॉर्ड्स है, वी वांटेड टू सेंड द अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट टू एनी थर्ड पार्टी सिस्टम. तो उसके पहले आपको उसे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यू रिक्वायर टू परफॉर्म द सीरियलाइजेशन प्रोसेस. तो वो सीरियलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पे ये मेथड जो है बना रहा हूँ. सो पब्लिक स्टैटिक एंड void. ठीक है. now required to give a name. So let's give the name as, for example, account records JSON generator. Try to give, GENERATIVE. Try to give the relevant name. I always told you that naming convention nobody will going to tell you. But what you require to do is like, you always require to follow the naming convention in a problem. So whenever you are coding something, whenever you are giving the name, try to give the relevant name as far as possible. So this actually indicates that we are trying to convert the records of account into JSON format, right? Okay. So अभी यहाँ पर कैसा था कि हियर आई वाज हैविंग दिस रिकॉर्ड. ये रिकॉर्ड सारा मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था यहाँ पे, बराबर है. लेकिन अब ऐसा नहीं है ना. हियर अभी हमको अकाउंट रिकॉर्ड्स, अकाउंट ऑब्जेक्ट में से रिकॉर्ड लेके आना है. सो फॉर दैट आई रिक्वायर टू फायर अ क्वेरी. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गेट द रिकॉर्ड्स, गेट द अकाउंट रिकॉर्ड्स. गेट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द अकाउंट ऑब्जेक्ट. ओके. अकाउंट ऑब्जेक्ट से मेरे को रिकॉर्ड लेके आना है. तो लेके आना है तो उसके लिए हमें क्वेरी फायर करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ अकाउंट वाई lst accounts. Why? Because the SQL query always return you, or SQL query always return you list of collection, right? List collection. तो चलिए अब क्वेरी बनाते हैं. लाइक select जो जो फील्ड चाहिए आप. फॉर एग्जांपल आई रिक्वायर select ID, I require name, I require rating, and what I probably require industry also, and I require to fetch annual revenue. I require to fetch annual revenue. I require to fetch the type, and I require to fetch, for example, phone, and after phone, I forgot to put the comma. अच्छा, probably guys हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बैकग्राउंड से आए, बिकॉज मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में क्लियर विद दैट. ठीक है. active underscore c. ठीक है. So I wanted to fetch all these values, and all these values I wanted to fetch
from account, and let me now do one thing over here, order by, ठीक है, order by name, name से उसको सीरियली अरेंज कर लेते हैं और इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑल दोस 37 रिकॉर्ड में लिमिट दे देता हूँ 5 की, ताकि वो एक्सप्लेन करने में आसानी जाए, ठीक है। सो दिस इज माय क्वेरी, यहाँ पर मैंने क्वेरी बनाया जिसमें आई हैव आस्क फॉर 5 रिकॉर्ड्स ऑफ द अकाउंट, इज द एरर, लिमिट की स्पेलिंग कर लेते हैं, लिमिट 5, ठीक है। ओके, तो दिस क्वेरी विल गोइंग टू रिटर्न मी 5 रिकॉर्ड्स एंड ऑर्डर बाय नेम अगर मैं बोल रहा हूँ तो जो रैंडम नहीं आएंगे फिर ये 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब ये अकाउंट ये दीज 5 रिकॉर्ड्स पहले 5 रिकॉर्ड सीरियली अरेंज होंगे, नेम से सीरियली असेंडिंग ऑर्डर रहेगा ना यहाँ पे। आपको अगर डिसेंडिंग में चाहिए तो आप डी एस सी करो, असेंडिंग में चाहिए तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगर इसके बाद में ऑर्डर बाय नेम, ठीक है, ए एस सी लिखते भी हो तो भी चलता है और नहीं भी लिखते तो भी चलता है, लेकिन अगर आपको प्रिसाइसली डिसेंडिंग में चाहिए तो यू रिक्वायर टू राइट ऑन डी सी, राइट, ऐसा। इसके बाद तो अब ये सारा रिकॉर्ड मेरा कहाँ जमा हो गया, एल एस टी अकाउंट, ठीक है, सारा रिकॉर्ड जो है मेरा वो कहाँ जमा हो गया, एल एस टी अकाउंट। अब मुझे इसको जेसन में कन्वर्ट करना, तो जेसन में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू रिक्वायर टू डू, क्रिएट द ऑब्जेक्ट, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन, GENERATOR जनरेटर क्लास, ठीक है। तो आपको इसके लिए जेसन जनरेटर क्लास, अब आप इसको जेसन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो फॉर दैट व्हाट यू रिक्वायर टू डू, आपको उसे जेसन जो जनरेटर क्लास है हमारी उसका इंस्टेंस, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। कैसे करते हैं, सिस्टम SYS system dot JSON generator, system dot JSON generator, and now give any name. So for example, account gen, this is the name of the object. This equals to again system dot JSON, system dot JSON dot create generator along with a boolean value, and that boolean value should always be equals to true and semicolon. Okay, so this is what this I created a class, I created an object, I created an instance, a temporary variable, a temporary representation of JSON generator class। तो अब मैं इसकी मदद से आगे के सारे काम, ठीक है, ACC gen की मदद से आगे का सारा। चलो सबसे पहले ACC gen, नाउ यू टेल मी कि जेसन जब भी शुरू होता है, तो जेसन जब भी शुरू होता है तो इट ऑलवेज स्टार्टेड विद व्हाट, इट ऑलवेज स्टार्टेड विद अ ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। तो उसके लिए हमारे पास में जो मेथड है, ठीक है, ACC जॉन जेन डॉट राइट स्टार्ट डॉट, और ये खत्म कहाँ पर होता है, ये खत्म कहाँ पे होता है, बाय द वे इट ऑलवेज एंडेड विद ACC जेन डॉट राइट राइट WRIT राइट एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये दो जगह। तो वी रिक्वायर टू राइट डाउन द स्टार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सारा जो कोड रहेगा आपका, दैट कंप्लीट कोड विल बी इनसाइड दिस ओनली, ठीक है, दैट कंप्लीट कोड विल बी इनसाइड दिस ओनली, ओके। चलो दैट कंप्लीट कोड विल बी इनसाइड दिस ओनली। अब कैसा है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड थोड़ी ना है, यहाँ पे हमारा एक रिकॉर्ड थोड़ी ना है, हमारा एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। चलो इसको ही देख लो आप, अकाउंट का कुछ है क्या, 1 सेकेंड गाइस, yes, so what I was trying to say is like we are handling multiple records, तो हम भले ही अकाउंट से फेच कर रहे हैं, तो मैं जस्ट आपको एक फॉर्मेट दिखाना चाहता था कि जहां पर how we have converted that multiple records into JSON। So let me go with, yeah. If you see this record, although this one is an opportunity example, but okay, we can relate. Definitely, we can relate. So if even I am writing, if I'm trying to convert 5 records into JSON, जो query मैंने यहाँ पे लिखी है, that query will going to fetch 5 records from the account, right? So what we are trying to do, we are trying to convert this 5 records of the account object into JSON format. So उसके लिए
उसके लिए हम एक बार एक काम करते हैं कि लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन कि हाउ वी कैन कन्वर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स इनटू द जेसन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू रिक्वायर टू डू इज लाइक आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए। तो फॉर दैट यू ऑलरेडी हैव रिटन दैट acc gen dot write start object and the end object, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं कि वी हियर वी रिक्वायर टू गिव द नेम टू द रिकॉर्ड्स। ये जो रिकॉर्ड्स है उनको हमें फील्ड नेम देना पड़ेगा, है ना, इसको कुछ ना कुछ फील्ड नेम, जैसे इन दिस केस आई हैव गिवन दिस एज एन अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड। तो हमारी केस में मैं उसको क्या दे सकता हूँ, आई कुड गिव द नेम फॉर एग्जांपल अकाउंट रिकॉर्ड्स, ऐसा दे सकता हूँ। नाउ फॉर राइटिंग दिस फील्ड नेम व्हाट इज द मेथड, what is the method that we have only field name, field name not with the value नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि हमें उस मेथड का नाम चाहिए जो कि हमें सिर्फ फील्ड नेम देती है। तो immediately after this opening bracket what I should write down, I should write down any such method that will provide me the facility to create the field name, ठीक है। उसके लिए जो मेथड है हमारी वो है राइट फील्ड नेम। सो मैं इसके इमीडिएटली बाद आई एम राइटिंग दिस acc gen, let me copy this acc gen dot write field name, ठीक है, राइट फील्ड नेम। एंड बिकॉज field name is in a string, so it must always be enclosed within single inverted comma, because it's a in your case यहाँ प्रोग्रामिंग में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जेसन में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो गिव दैट नेम फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे रहा हूँ अकाउंट रिकॉर्ड्स, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। उसके बाद चलिए वापस चलते हैं, अब ये भी दे दिया आपने। इसके बाद में whenever we are dealing you know whenever we are dealing with the multiple records, we first of all define one array and let this value as to be assumed as the members of the array, as the value of the array, individual एक एक array की एक एक वैल्यू। so whenever we are dealing with the multiple records, so what we require to define, we always require to enclose them within your array, right, within your array। तो यहाँ तक पहुंच गए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखा, फिर ये देखा, अब आपको अरे डिफाइन करना है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कर लेते हैं। तो अरे के लिए जो मेथड हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, आफ्टर दैट acc gen dot write array, acc gen dot write start of array, ठीक है, राइट स्टार्ट ऑफ array, ठीक है। एंड देन सिमिलरली acc gen dot write end of array, ठीक है, एंड ऑफ array। let me remove some spaces from, just make it more readable, nothing else, I'm just trying to make it more readable। सो सो अब हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमारा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट भी हो चुका है, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट भी हो चुका है। नाउ व्हाट वी रिक्वायर टू अज्यूम एवरी रिकॉर्ड एज अ ऑब्जेक्ट, कि ये हर रिकॉर्ड जो होता है दैट इज आल्सो इनसाइड योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, दैट ऑलवेज है ना, हर रिकॉर्ड, एवरी रिकॉर्ड is always inside what opening and a closing bracket। so what I require to assume, I require to assume that every record itself is an object, ठीक है। तो चलो उसके इसके पहले हम एक काम करेंगे कि हमें आपको यहाँ पर राइट स्टार्ट ऑब्जेक्ट ही लिखना है, बट देन उसके उसके पहले मैं काम ये करता हूँ कि आई मस्ट चेक कि ये जो हमारी क्वेरी फायर हुई है और जिसने एलएसटी अकाउंट में सारे रिकॉर्ड्स को डिपॉजिट किया है, तो वेदर एज अ बेस्ट प्रैक्टिस जो हम हर बार करते हैं, ठीक है, हर बार जो करते हैं, सो इसके अंदर में मेरा सारा कोड रहेगा, माय होल कोड विल बी ओवर हियर। तो मैं अब यहाँ पे ये चेक करूंगा एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, आई शुड ऑलवेज चेक कि वेदर इफ if not of this collection is empty, if not of this collection is empty, as a best practice to avoid that null pointer exception, है ना, ये हम हर बार करते हैं, this we always do, just as a best practice, we always do this, है ना, ये हम हमेशा करते हैं। चलिए, तो here I will be checking that this query has fired properly and it has returned me 5 records of the account that are stored inside this particular collection, right? So I require to check whether this collection is not empty,
अगर कलेक्शन एम्प्टी है तो फिर क्या करो, क्या मतलब किसको कन्वर्ट करोगे आप, यू नो। to avoid that null pointer exception we are checking this। चलिए अब अगर if it is not empty तो अब मैं एक एक रिकॉर्ड को फेच करूंगा, I'll be fetching every record और फिर मैं उसको एज एन ऑब्जेक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करता चला जाऊंगा। चलिए तो अब मैं क्या करता हूँ, फॉर फेचिंग एवरी रिकॉर्ड फ्रॉम दिस कलेक्शन एलएसटी अकाउंट, तो I'll be making a use of enhanced for loop for from where I'm fetching it from LST accounts। मैं LST account से fetch कर रहा हूँ and the every record what I am fetching is of the data type account। ठीक है, और एक वेरिएबल कोई भी एक लोकल वेरिएबल ले लो जैसे कि ACC, यहाँ पर आप उसे रखने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर आप उसे रखने वाले। अब जब हमारा एक एक रिकॉर्ड हमको मिल रहा है तो वी रिक्वायर टू represent each record as या in the form of object, required to represent each record in the form of an object। हर एक रिकॉर्ड जो है उसको आपने इस तरह से एक एक ऑब्जेक्ट अज्यूम करके चलना है। एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, लाइक योर एवरी रिकॉर्ड मस्ट बी enclosed within this। तो दिस इज स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो उसी के अंदर आपको सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो उसके अंदर रखना है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट और ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपने डालनी है तो फिर से आपकी वही मेथड्स आ जाती हैं फिर से। हियर acc gen, I'm just copying this acc gen once again, acc gen dot पहला में रहेगा मेरा राइट स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड देन acc gen dot राइट एंड ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड राइट एंड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ रहेंगे मेरे सारे रिकॉर्ड्स, यहाँ रहेंगे मेरे सारे रिकॉर्ड। चलिए तो इसके अंदर एक एक रिकॉर्ड जो है वो इस तरह से मैं पुटअप करता चला जाऊंगा। अब ठीक है, यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग, मतलब ये आपको ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट दे देगा, ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट दे देगा फॉर एवरी रिकॉर्ड। आपको हर रिकॉर्ड के लिए नहीं लिखना है ये, बिकॉज आपने फॉर लूप में लगा दिया। तो ये पहला रिकॉर्ड जब फेच करेगा, पहला रिकॉर्ड फेच करेगा एसीसी में डालेगा, उसके लिए ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों दे देगा। फिर अगला रिकॉर्ड आएगा उसके लिए भी ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट दे देगा। इस तरह से जितने भी रिकॉर्ड फेच होंगे, अभी हमने लिमिट 5 रखी है इसलिए 5 रिकॉर्ड फेच होंगे। तो हर एक रिकॉर्ड के लिए ऑटोमेटिकली, हर एक रिकॉर्ड के लिए ऑटोमेटिकली आपको ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर यू जस्ट रिक्वायर टू फॉर्म दैट डेटा। अब आपको डेटा फॉर्म करना है जैसा आपने इसके पहले के प्रोग्राम में भी किया था, राइट। ठीक है, एरर क्या है, वैलिड टाइप अकाउंट, अकाउंट की स्पेलिंग गलत है, अकाउंट, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे सारा का सारा डेटा रिप्रेजेंट करना। चलो तो उसके लिए मुझे एक बार मेरी क्वेरी पे जाना पड़ेगा, और क्वेरी पे जाने के बाद में मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कौन कौन सी वैल्यूज मैंने फेच करवाई। जो सबसे पहली वैल्यू मैंने फेच करवाई है यहाँ पे वो है आईडी, और उसके बाद में है नेम। ठीक है, तो आईडी अगर आपको लिखना है, बाय द वे आईडी अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए राइट आईडी फील्ड होती है। चलो तो अब मैं एक एक रिकॉर्ड पकड़ के यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो एसीसी जेन, ठीक है, एसीसी जेन डॉट राइट आईडी, ठीक है, ये देखिए ये एक मेथड है राइट आईडी, एसीसी जेन डॉट राइट आईडी। तो मैं ये मेथड देता हूँ, और आईडी के बजाय आईडी फील्ड दे देता हूँ, डॉट राइट आईडी फील्ड, ये वाला, ठीक है, आईडी फील्ड जो एक ही मेथड से दोनों काम करेंगे। तो फील्ड नेम क्या है हमारा, द फील्ड नेम इज आईडी, फील्ड नेम इज आईडी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दीजिए आप, फील्ड नेम इज आईडी, ठीक है। और जो वैल्यू आपने फेच कर रखी है, जो वैल्यू आपने फेच कर रखी है वो यहाँ पर आई है एलएसटी अकाउंट्स में, और एलएसटी अकाउंट से आप एक एक वैल्यू एसीसी में ले रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दूंगा एसीसी डॉट आईडी, ठीक है, यहाँ पे मैं दूंगा एसीसी डॉट आईडी। ये हो गया आईडी, आईडी का काम खत्म। अब उसके बाद हम चलते हैं अगली वैल्यू की तरफ। तो अगली वैल्यू जो है आफ्टर आईडी व्हाट वी हैव फेच, नेम, ठीक है, आईडी और नेम। अच्छा एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों से, पहले मैं नेम लिख लेता हूँ उसके बाद में
और मुझे थोड़ा सा सोच समझ के इसका जवाब दीजिए। एसीसी जेन डॉट, अब नेम क्या है, स्ट्रिंग है, तो राइट, राइट स्ट्रिंग, राइट स्ट्रिंग फील्ड, ये वाला लो, ताकि मेरा एक ही मेथड से दोनों कवर हो जाए। ठीक है, फील्ड नेम है, फील्ड नेम क्या देंगे आप, फील्ड नेम देंगे आप इसे नेम, फील्ड नेम देंगे आप इसे नेम, और जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू कहाँ से आ रही है, एसीसी डॉट, एसीसी डॉट, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, ये जितनी भी मैंने फील्ड्स यहाँ पे मीन्स ये जितनी भी फील्ड्स मैंने यहाँ पे फेच करवाई है, अगर आप ध्यान से देखें तो आईडी और नेम जो है, ये हमारी मैंडेटरी फील्ड्स, मैंडेटरी इन द सेंस कैसा है, ये स्टैंडर्ड फील्ड्स, हम ये जानते हैं कि वेन एवर रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड, नेम बाय डिफॉल्ट सभी के लिए क्रिएट होता है ना, नेम जो है बाय डिफॉल्ट सभी के लिए क्रिएट होता है, और आईडी जब रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो आईडी भी क्रिएट होती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसा रिकॉर्ड आए जिसका नेम और आईडी ब्लैंक हो। आप भी सोचिए, मैंने इतनी सारी फील्ड्स फेच करवाई है, थोड़ा सा ध्यान से समझो इस चीज को, और ये बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिसमें आईडी और नेम ना हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बाद क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसा रिकॉर्ड जिसकी रेटिंग नहीं हो, ऑफ कोर्स हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जिसकी इंडस्ट्री वैल्यू नहीं हो, ये भी हो सकता है। एनुअल रेवेन्यू हो सकता है कि हो नहीं हो। तो अब इसके बाद मतलब आईडी और नेम को छोड़ के यहाँ बाकी जितनी भी वैल्यूज है, ये पॉसिबल है कि कोई जो रिकॉर्ड हमने फेच करा है उसमें ये वैल्यू नल भी हो सकती है, और ये वैल्यू जो है रेटिंग की हॉट कोल्ड वार्म वो भी हो सकती है। इंडस्ट्री नल भी हो सकता है, तो इंडस्ट्री एट द सेम टाइम बैंकिंग या कोई अदर वैल्यू हो सकता है। तो जब हम जेसन बनाते हैं ना, तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ता है कि अगर कोई बाय द वे ऐसी फील्ड है जिसकी वैल्यू नल भी हो सकती है, तो आपको नल का प्रोविजन भी यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, ये दो फील्ड के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं एब्सोल्युटली श्योर हूँ कि जो भी रिकॉर्ड फेच होगा उसमें फॉर श्योर 100%, यहाँ तक कि 200% आईडी और नेम तो होगा ही होगा। बिना आईडी और नेम के कोई रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता, ये फील्ड कभी ब्लैंक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। But of course, after that you have these fields: rating, industry, and annual revenue. Now they could have the value, they could even don't have the value. तो हमें वो पॉसिबिलिटी जो है ना, उसको ध्यान में रखना है, उसको स्किप नहीं करना है, वरना प्रोग्राम में एरर आता है। तो बेस्ड ऑन दैट, अगर कोई ऐसी फील्ड, ऐसी कोई रिकॉर्ड आ जाए जो कि नल हो, तो उसके लिए आपको आपका प्रोग्राम जो है उसमें वो प्रोविजन होना चाहिए, है ना, आपके प्रोग्राम में वो प्रोविजन होना चाहिए। तो अब मैं रेटिंग से वो प्रोविजन स्टार्ट करता हूँ और इसको आगे तक मेंटेन करूँ। तो मैं क्या प्रोविजन दे रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, मैं दे रहा हूँ इसके बाद में, अब मैं इसके पहले कि मैं रेटिंग फील्ड को कन्वर्ट करवा लूँ, रेटिंग फील्ड को कन्वर्ट करवा लूँ, मैं छोटा सा एक चेकिंग करूंगा। चेकिंग क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि इफ acc डॉट रेटिंग, ठीक है, इफ acc डॉट रेटिंग इक्वल्स टू नल, इफ acc डॉट रेटिंग इक्वल्स टू नल, और या फिर acc डॉट रेटिंग, ठीक है, acc डॉट रेटिंग इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर, अगर ये एम्प्टी और अगर ये नल है, इफ इट इज एन एम्प्टी, इफ इट इज नल, अगर एम्प्टी है और नल है, अगर ये है, तो अब मैं क्या करता हूँ, फॉर दैट व्हाट आई विल बी डूइंग इज लाइक, तो अब मैं इसके लिए नल वैल्यू राइट करूँ, इसके लिए नल वैल्यू राइट करूँ। तो उसके लिए नल वैल्यू के लिए हमारे पास अपना एक फंक्शन है, acc gen डॉट writ, राइट, राइट नल, नल फील्ड किया, ठीक है, राइट नल फील्ड, राइट नल फील्ड, और कौन सी नल फील्ड, रेटिंग, राइट नल फील्ड ब्रैकेट में रेटिंग, ठीक है। ये कब, अगर acc डॉट रेटिंग की वैल्यू नल है तो, और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आप एल्स पार्ट पे आओ इसके, एल्स, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, देन acc gen डॉट राइट स्ट्रिंग फील्ड, ठीक है, बिकॉज रेटिंग के अंदर जो है, जैसे हॉट कोल्ड वार्म, ये सब भी क्या रहता है, ये सब भी आपकी स्ट्रिंग होती है, ठीक है, राइट स्ट्रिंग फील्ड रेटिंग, ठीक है, और यहाँ रहेगा acc डॉट रेटिंग एंड सेमीकोलन, ठीक है। अब ये जो प्रोविजन डिजाइन किया ना मैंने, ये प्रोविजन मेरे को हर जगह कर, ये प्रोविजन मेरे को हर हर फील्ड के लिए कर, क्योंकि जितनी भी फील्ड्स मैंने क्वेरी पे बनाई है, जितनी भी फील्ड्स मैंने क्वेरी पे बनाई है, तो नेम को छोड़कर और आईडी को छोड़कर बाकी सबके साथ ये पॉसिबिलिटी है, बाकी हर किसी के साथ ये थ्रेट है हमको, कि ये जो वैल्यू है ना वो नल हो सकती है। तो आपके प्रोग्राम में वो प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है।
तो वो हर बार हम करेंगे इसके बाद में। फॉर एवरी फील्ड वी आर गोइंग टू चेक द सेम थिंग, वी आर गोइंग टू चेक द सेम थिंग। उसके बाद में फिर इफ अगली फील्ड, रेटिंग के बाद में कौन सी अगली फील्ड है, हमने कौन सी खुलवाई है, इंडस्ट्री। रेटिंग के बाद अगली फील्ड है इंडस्ट्री। मैं कंडीशन डालता हूँ कि इफ एसीसी डॉट इंडस्ट्री, एसीसी डॉट इंडस्ट्री, ठीक है, इक्वल्स टू नल, और acc डॉट इंडस्ट्री, ठीक है, इक्वल्स टू एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी है या नल है तो फिर आपको क्या करना है, लेट मी कॉपी दिस, नल फील्ड लिखना है। नल फील्ड किसके आगे लिखना है, इंडस्ट्री के आगे। और बाय द वे अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, देन एल्स व्हाट यू रिक्वायर टू राइट, इंडस्ट्री acc, this is dot write string what, industry is acc dot industry, ठीक है। चलिए ये कंडीशन होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इफ आफ्टर रेटिंग क्या है, एनुअल रेवेन्यू। सो एनुअल रेवेन्यू आपको याद होगा कि एनुअल रेवेन्यू एक नंबर फील्ड होती है, तो इसमें हम राइट राइट स्ट्रिंग फील्ड नहीं लेंगे, इसके लिए हम जो है राइट नंबर फील्ड लेंगे, ठीक है, राइट नंबर फील्ड लेंगे। बट उसके पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि वेदर दैट acc डॉट एनुअल रेवेन्यू, ठीक है, इक्वल्स टू नल, क्या इसकी वैल्यू नल है, या फिर acc डॉट एनुअल रेवेन्यू, ठीक है, इक्वल्स टू एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी है, अगर ऐसा है, तो फिर मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे उसके नल फील्ड लिखना। इफ इट इज लाइक दैट देन आई शुड राइट ऑन दिस नल फील्ड एंड रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू, ठीक है। और बाय द वे अगर ऐसा नहीं है, इफ इट इज नॉट लाइक दैट देन एल्स acc gen dot राइट नंबर फील्ड, राइट नंबर फील्ड, ठीक है, राइट नंबर फील्ड। तो फील्ड नेम इज ऑलवेज इन द फॉर्म, इट्स एनुअल रेवेन्यू, यहाँ मैंने नंबर फील्ड क्यों लिया, मैंने स्ट्रिंग फील्ड क्यों नहीं लिया, क्योंकि एनुअल रेवेन्यू की जो वैल्यू है वो नंबर है, इसलिए नंबर एनुअल रेवेन्यू। और यहाँ पे चाहिए मुझे acc डॉट एनुअल रेवेन्यू, ठीक है, यहाँ चाहिए मुझे acc डॉट एनुअल रेवेन्यू। चलो ये हो गया एनुअल रेवेन्यू के लिए भी कंप्लीट। लेट मी सेव अप टू दिस, errors where is that, see what is that, comparison argument has become compatible with decimal, okay, okay, सी एनुअल रेवेन्यू नल, एनुअल रेवेन्यू जो है ना, ये नंबर है, नंबर नंबर जो है, जब भी आप किसी फील्ड को ऐसे यूज करते हो जो नंबर है, यू कैन नॉट गो विद दिस इक्वल्स टू एम्प्टी। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी और वो आएगा इक्वल्स टू नल, ठीक है, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इज नल एंड इज एम्प्टी, ये डिफरेंस है। तो एनुअल रेवेन्यू क्योंकि नंबर फील्ड है, नंबर फील्ड के कंपैरिजन में हमेशा जो है सिर्फ नल रहेगा, एम्प्टी नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इंडस्ट्री के बाद में टाइप, टाइप एक स्ट्रिंग है, टाइप एक स्ट्रिंग है। मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ कि पहले मैं चेक करूंगा कि इफ acc डॉट टाइप, ठीक है, और टाइप बिकॉज एन स्ट्रिंग है, तो इसके लिए मैं फिर से दोनों चीजें चेक करूंगा कि वेदर इट इज नल और acc डॉट टाइप इक्वल्स टू क्या है, एम्प्टी। अगर ऐसा है, बाय द वे इट इज लाइक दैट, और बिकॉज दैट इज अ स्ट्रिंग आई विल गो विद दिस राइट नल। ये तो कॉमन ही है सभी में, राइट नल, राइट नल फॉर व्हाट, राइट नल फॉर टाइप फील्ड। बट एल्स अगर ऐसा नहीं है बाय द वे, तो राइट स्ट्रिंग फील्ड, राइट स्ट्रिंग फील्ड, ये वाली वैल्यू, एल्स राइट स्ट्रिंग फील्ड टाइप type टाइप इक्वल्स टू acc डॉट टाइप, ठीक है। ये हो गया टाइप, टाइप भी हो जाता है आपका। टाइप के बाद में कौन सी फील्ड है आपकी, टाइप के बाद में आपकी फील्ड है फोन, ठीक है, टाइप के बाद में आपकी फील्ड है फोन, ओके। सो फोन इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग, इफ यू नो फोन इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग,
सबसे पहले तो मैं ये वाला जो कोड है हमारा वही मैं चेक करूँ। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। acc डॉट फोन इक्वल्स टू नल है, या फिर acc डॉट फोन की वैल्यू एम्प्टी है, तो आपको फोन के लिए नल लिखना है। वन सेकेंड। सो acc में चेक कर रहा हूँ कि फोन की वैल्यू नल है या एम्प्टी है। अगर नल है तो इसके लिए फोन के सामने राइट नल का कुछ मत लिखो, एम्प्टी रखो उसको। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको फोन के लिए जो भी वैल्यू फेच होके आई है क्वेरी से, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देना। ये हो गया फोन, इतना सेव कर लेते हैं। फोन के बाद में जो हमारी फील्ड है वो है फैक्स। फैक्स इज ऑल्सो योर स्ट्रिंग फील्ड ही रहती है। तो मैं ये वाला कोड फिर से कॉपी करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करो तो आप समझ जाओगे कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, बस आपको थोड़ा सा कॉशियसली काम करना है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि फैक्स की वैल्यू नल है या अगर एम्प्टी है, तो उसके लिए फैक्स के सामने में नल लिख दीजिए, राइट नल फील्ड। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है तो फैक्स के लिए जो भी वैल्यू फेच होके आई है वो लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया फैक्स भी कंप्लीट। फैक्स के बाद में आपकी एक्टिव स्टेटस है जिसकी वैल्यू येस और नो होती है। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हम फिर से इतना कोड कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम फिर से नीचे में ले जाके पेस्ट करते हैं यहाँ पे। और हम इस बार चेक करेंगे कि acc डॉट, ठीक है, acc डॉट एक्टिव स्टेटस की जो वैल्यू अगर वो नल है, ठीक है, acc डॉट एक्टिव स्टेटस की वैल्यू नल है। हाँ, एक सेकंड। ठीक है, या फिर ac डॉट फैक्स की वैल्यू क्या है, एम्प्टी है। अगर बाय द वे ऐसा है तो आपको एक्टिव स्टेटस के सामने में आपको लिखना है नल। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो एक्टिव स्टेटस की वैल्यू जो भी एक्टिव स्टेटस की वैल्यू है। ये हो गया आपका पूरा संकेत तैयार। इसके बाद में राइट एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने बताया। उसके बाद में अरे एंड होता है, मेन ऑब्जेक्ट आपकी एंड होती है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ पे एंड हो जाती है। ये अननेसेसरी स्पेस हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम सिस्टम डॉट डीबग दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं सिस्टम डॉट डीबग, और जो भी जेसन कंटेंट आया उसको हमने प्रिंट करना। उसके लिए मैं लिखता हूँ कि जेसन कंटेंट इक्वल्स टू स्पेस प्लस प्लस acc gen डॉट गेट एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये इसकी मेथड है। इससे आपका पूरा डेटा जेसन में जो है वो भी डीबग पे प्रिंट हो जाएगा। चलो, मेथड हमारी पूरी बन के तैयार हो गई है। अब उसे रन करना है, तो रन करने के लिए मैं क्लास नेम कॉपी करता हूँ, क्लास नेम, और क्लास नेम डॉट हमारी मेथड नेम, क्लास नेम डॉट मेथड नेम अकाउंट रिकॉर्ड जेसन जनरेटर। ठीक है, ये हमारी मेथड है, अकाउंट रिकॉर्ड जेसन जनरेटर। ये मेथड को एग्जीक्यूट किया। चलो, डीबग अपना तैयार हो गया है। ओके, तो इसको समझने के लिए भी नहीं, अलग अलग लाइंस में भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर भी समझते हैं हम। जैसे ये ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, ठीक है, ये एक ओपनिंग ब्रैकेट हो गया सबसे पहला वाला। ये आपका क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। इसके बाद अरे ओपन हुआ, अरे क्लोज हुआ। ठीक है, अब पहला रिकॉर्ड, जो आपका पहला रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड ये यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, ये उसका। ठीक है, पहला रिकॉर्ड देखिए, आईडी, नेम, रेटिंग, ठीक है, जो भी है, फैक्स वगैरह आ गया। उसके बाद कॉमा, फिर दूसरा दूसरा रिकॉर्ड। तो हर रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो रहा है। यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट आया फिर से। उसके बाद आईडी, नेम, रेटिंग, स्ट्रीम, जो भी है। ठीक है, हाँ, यहाँ देखो आप, इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए एथीना होम प्रोडक्ट्स के लिए रेटिंग की वैल्यू नल थी। अगर मैं वो प्रोविजन नहीं देता ना प्रोग्राम में, तो यहाँ पे आपको एरर मिलता था।
इसीलिए ये प्रोविजन देना जरूरी होता है। ये बेसिक रूल्स है इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस हम जिसको बोलते हैं। उसमें जब भी हम जेसन को पार्स कर रहे हैं, जेसन जनरेट कर रहे हैं, तो हमें ये प्रोविजन देना पड़ता है कि जो नॉन मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, इसके पहले कि आप उसका जेसन डिमांड करो। क्योंकि देखो, आप कह रहे हो कि रेटिंग को कन्वर्ट करके दो, आपके हिसाब से रेटिंग क्या है, स्ट्रिंग है, तो आप बिंदास लिख लो राइट स्ट्रिंग फील्ड। लेकिन आप ये भूल जा रहे हो कि रेटिंग की वैल्यू जो होती है वो होती है हॉट, कोल्ड, वार्म। एक वैल्यू और होती है उसमें, वो होती है नन। चौथी वैल्यू जो थी आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो अब अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड सामने आता है जिसके लिए रेटिंग की वैल्यू थी नन, तो आपका जेसन जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एरर आता है। तो हम ये प्रोविजन जब भी हम इंटीग्रेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसको बोलते हैं, उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप जेसन कन्वर्ट कर रहे हो और कोई भी फील्ड जो नॉन मैंडेटरी है, देखो मैंने आईडी और नेम के लिए ये चीजें ध्यान नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है कि 100% कोई भी ऐसा रिकॉर्ड है तो हर रिकॉर्ड में आईडी और नेम तो होता ही है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि बिना आईडी नेम के रिकॉर्ड हो। लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि बिना रेटिंग के रिकॉर्ड हो। ये आपके सामने यहाँ पर ही है, रेटिंग नल है, एथीना होम प्रोडक्ट्स। तो अगर आप बाय द वे इसको डायरेक्ट ये मेथड लिखते ना, तो आपको एरर आता था प्रोग्राम। इसलिए ये प्रोविजन देना जरूरी होता है। क्लियर है? चलो ऐसा, तो ये इस तरह से देखिए आपके सारे रिकॉर्ड जो है, पहले 5 रिकॉर्ड कन्वर्ट हो इस तरह से। ये होता है जेसन का कन्वर्शन। तो जब भी अब ध्यान से सुनो आखिरी बात, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट, सीरियलाइजेशन सिखाया मैंने आज आपको, क्या सिखाया है? सीरियलाइजेशन। के कोई भी एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड, कोई भी सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड, किसी भी टाइप का एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड, अगर आपको उसे एक थर्ड पार्टी सिस्टम को भेजना है, तो उसके पहले आप जब उसे भेजें तो उसके पहले आपको उस रिकॉर्ड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप एक एक रिकॉर्ड थोड़ी ना बोलोगे, इसके लिए आपको किस क्लास की मदद चाहिए? आपको जेसन जनरेटर क्लास की मदद चाहिए। तो अभी मैंने जैसे आपको ये बताया कि किस तरह से प्रैक्टिकली एकदम रियल टाइम पे, जब भी जैसे अकाउंट हो या कॉन्टैक्ट हो, अगर मुझे उसको भेजना है तो हम किस तरह से भेजेंगे? पहले आप रिकॉर्ड लेके आएंगे, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले हम वो रिकॉर्ड लेके आएंगे, ठीक है? क्वेरी फायर करेंगे, रिकॉर्ड लेके आएंगे, जो भी फील्ड चाहिए आपको। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे जेसन जनरेटर क्लास का, और फिर उसकी मेथड से आपने ये सारा कर। तो इस पे आज सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करो, और कल मैं स्टार्ट करता हूँ इसका रिवर्स, जो कि है डी सीरियलाइजेशन। डी सीरियलाइजेशन का मतलब इसका उल्टा होता है। डी सीरियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये सेल्सफोर्स है, ये बाहर की ऑब्जेक्ट है, और बाय द वे ये जो डेटा भेज रहा है, वो भी डेटा किस में आ रहा है? जेसन में आ रहा है। वो डेटा जेसन में आ रहा है, उसे कन्वर्ट करना एस ऑब्जेक्ट, ठीक है? उसे कन्वर्ट करना एस ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं डी सीरियलाइजेशन। अभी क्या सीखा आपने? एस ऑब्जेक्ट डेटा को जेसन में कन्वर्ट करना, एस ऑब्जेक्ट डेटा को जेसन में कन्वर्ट करना। तो ये था सीरियलाइजेशन, और इसका अपोजिट जो है वो डी सीरियलाइजेशन। तो इसके लिए हमें जेसन पार्सर क्लास लगेगी कल। तो कल भी मॉर्निंग, कल सैटरडे है, कल भी मॉर्निंग 8:30 को ही आपकी क्लास रहेगी, क्योंकि इवनिंग में मेरा जम नहीं रहा है, ठीक है? तो कल भी मॉर्निंग में 8:30, और संडे के दिन मॉर्निंग में भी 8:30 आपकी क्लास रहेगी। सभी लोग ज्वाइन करो, जो लोग आज ज्वाइन नहीं करें प्लीज उन तक मैसेज कन्वे करो क्लास में। और कल मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी जेसन पार्सर, जेसन पार्सर इसके नीचे जेसन पार्सर क्लास, जो कि हम डीसरियलाइजेशन के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है? चलो, प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑन दिस, और कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।